फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। टुडे वी हैव द लेक्चर ऑफ क्लास 7 एनसीईआरटी and the chapter number is 5, named acids, bases and salts. What is the name of the chapter? Acids, bases and salt. This is the chapter of today. Friends, this chapter's knowledge is very useful for 10th class also, and if you will opt the science as a stream in 12th or in graduation after 12th, then acid, bases and salt knowledge will be required. And for competitive exams also, this is the basic knowledge of chemistry. If any competition you have 100 or 150 questions, 5 question will be from science at least, and 1 to 2 question will be from chemistry. So friends, you have to study chemistry. This is the class 7, and if you are a student of class 7, then it is up to you to understand the whole chapter. Friends, I will put all the lectures of class 7, 8, 9, 10 in upcoming times. But today I am going to teach you class 7 chapter number 5. The one thing is acid, bases and salt. First of you have to recall what is the acid. दोस्तों, मैं आपको थोड़ा हिंदी में ही बता देता हूँ कि आपने घर में सुना होगा कि मेरे पेट में जो है वो गैस बन गई है, तेजाब बन गया है, एसिड की प्रॉब्लम हो गई है। तो एसिड कुल मिला के क्या है? क्या है एसिड? ठीक। और बेस क्षार की तरह काम करता है। ये बेस को बेसिस कहते हैं क्षार। तो एसिड जैसे एसिटिक एसिड है, सिरका है, इसका इस्तेमाल किस में करते हैं? अचार वचार को संरक्षित रखने के लिए सिरके का इस्तेमाल करते हैं। ठीक। बेस क्या होता है? बेस भी एक एसिड का काउंटर पार्ट है। बेस जैसे किसी को एसिड बन गई है पेट में, तो जो हम इनो पीते हैं या गैस की दवाई खाते हैं उसमें बेस की मात्रा ज़्यादा होती है। बेस होता है ठंडक देता है। और जब इन दोनों को मिला देते हैं, एसिड एंड बेस को, तो सॉल्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? सॉल्ट। क्या बन जाता है दोस्तों? सॉल्ट। जैसे कि मैं आपको एक समझाऊं, देखो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, इसके बाद हम जल्दी शुरू करते हैं। एसिड ये हो गया, जो मान लो हमारे पेट में बनता है। इसके बाद हमने बेस दवाई के तौर पे पेट में डाला, अब बन क्या गया? सॉल्ट। पेट में बन गया और आराम मिल गया। अब नमक खाते हैं, कोई दिक्कत होती है? कोई नहीं दिक्कत है। अब हम देखते हैं नमक कैसे बनता है। तो देखो HCl होता है। HCl क्या है? एक एसिड है। HCl क्या है? एक एसिड है। ठीक है ना। और नमक का फार्मूला क्या होता है? NaCl। ये नमक है। तो एसिड में बेस डाल देता हूं मैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? बेस है दोस्तों। ये क्या है? बेस। तो एसिड प्लस बेस तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको डिक्टेट करूंगा। आई विल डिक्टेट द होल चैप्टर, है ना। और माय लेक्चर विल बी आल्सो साउथ इंडिया फ्रेंड्स, साउथ इंडियंस। My lecture I will also teach you in I have too much questions from the South Indian students that sir please dictate English also. So I will also dictate something in English, not in whole for only Hindi.
So friends, let's start. We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar, and vinegar. Vinegar means acetic acid. We use all these things in our day-to-day life. ठीक, शुगर भी नो, चीनी, सॉल्ट नमक, ठीक है, लेमन नींबू, कॉमन सॉल्ट हो गया, टैमरिंड हल्दी. Do they have same taste? We know. Let us recall the taste of edible substances listed, and these are the substances have same taste. No, there is no confusion. Let's move. Taste of all these things. So think you that these all things will be same taste or not. Now we come on acid and bases. The important thing which you have to note down on your notebook, I will tell you that please note down. Beside this, there is no need to note down. And the thing which you note down on in your notepad, you have to be comfortable with all those notes. You have to learn. You have to learn by your will, by your heart, by your mind. I don't know. You have to write it again and again, or you have to learn by walking in your home, or by any other method, but you have to learn. It is not for class 7, it is for 10th, it is for 12th, it is for your whole life. So I will tell you what you have to write. Curd, lemon juice, orange juice, vinegar taste sour. These substances taste because they contain acids. The chemical nature of the such substances is acidic. The word acid comes from the Latin word acre, which means sour. जो खट्टे पदार्थ जितने भी होते हैं सोर टेस्ट ज़्यादातर क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं. ठीक. What about the baking soda? Does it taste sour? If not, what is it taste? Since it does not taste sour, its name that it has no acidic in it. It is bitter in taste. If you rub its solution between fingers, it feels soapy. अगर आप लोगे और इसे अपने उंगलियों के बीच में रगड़ोगे बेकिंग सोडा को, तो वो साबुन की तरह लगेगा, थोड़ा वो झाग से. जनरली सब्सटेंसेस लाइक दीज आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी इन टचिंग, नोन एज बेसिस. ठीक है. तो ये एक जनरल थिंग है ना. जो कंपटीशन का बच्चे हैं हमारे साथ, वो इन चीज़ों को ना ले, क्योंकि वो पूछता है कंपटीशन में इसका उल्टा. तो इसलिए आप इसे न लें. लेकिन हाँ, ये है कि एक बच्चे को समझने के लिए जो 7th क्लास का है, उसे ये समझ लेना चाहिए कि जिसका टेस्ट बिटर होता है, थोड़ा कड़वा होगा, सोपी ऑन टचिंग, तो ये बेसिस होंगे. और जितने भी खट्टे होंगे वो कैसे नेचर के होंगे, एसिडिक नेचर के. कैसे होंगे दोस्तों, एसिडिक नेचर के. कैसे होंगे मेरे भाइयों, एसिडिक नेचर के. कैसे होंगे, एसिडिक नेचर के. ठीक है ना. स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेज आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक एंड बेसिक. अब ये है असली की इंडिकेटर बताएगा. ये तो ये हो गया कि एक बिल्कुल विलेज मेथड है, होम ग्राउंड मेथड है, कि आपको टेस्ट के आधार पे आपने पहचान लिया, ये कर लिया. लेकिन बच्चे लिख सकते हैं ऐसा, लेकिन अभी ये नोट डाउन नहीं करना. दिस सब्सटेंस नोन एज इंडिकेटर. कुछ इंडिकेटर्स हैं. दिस इंडिकेटर कैन चेंज द कलर व्हेन दे एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस. व्हेन वी विल यूज दिस इंडिकेटर्स, इट विल चेंज द कलर ऑफ एसिड्स एंड बेस. नाउ मूव फॉरवर्ड. Do you know acetic acid, vinegar, formic acid, anti-sting, and this something we can note down here. Something we can note down here. Vinegar, acetic acid. For small competitions, 10+2. Formic acid, anti-sting. Citric acid, orange and lemons. Lactic acid, curd. Oxalic acid, spinach. Ascorbic acid, amla, citrus fruit. These things you have to write down on your copy for competitive exams and for also class 7. Tartaric acid, tamarind, grapes,
अनराइप मैंगोज टार्टरिक एसिड खट्टा होता, याद करना पड़ेगा इसे, भर लो दिमाग में, चाहे आप किसी भी क्लास के हो, कुछ भी हो, इसे याद करो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको भी याद करें, रट लें इसे, चाहे क्लास 7 के बच्चे हों, भले उनके स्कूल में ना पूछा जाए, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग वाली चीज़ें हैं, इसे आप लिखें, नोट डाउन करें, इस पूरे टेबल को, डू यू नो को याद कर लें। ठीक है, नाउ बढ़े आगे। ठीक, ये इंडिकेटर्स हैं, तो कुछ तो इंडिकेटर्स केमिकल ही होंगे, कुछ इंडिकेटर ऐसे होंगे जो कि नेचुरल होंगे, जो नेचर में हमें मिल जाएंगे। देखते हैं, लिटमस इन नेचुरल डाई, एक नेचुरल डाई है, देखें। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचेंस, लिचेंस होता है, एक्सट्रैक्ट करा जाता, निकाला जाता। इट हैज ए मूव पर्पल कलर, इज डिस्टिल्ड वाटर, when added to an acidic solution it turns red, and when added to a basic solution it turns blue। ये है मटेरियल, इसे लिखें। लिटमस, लिटमस का बिहेवियर क्या होता है? जब कोई एसिड होगा, जब कोई एसिड होगा और उसमें आप लिटमस डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? जब कोई एसिड होगा और उसमें आप लिटमस डाल देंगे तो क्या होगा? देखें, है ना? आई बात समझ में? क्या होगा ये आप सोचें, देखो इसमें लिखा हुआ सारा, when added to an acidic solution it turns red। है कि नहीं? रेड एसिड में डाला और बेस में डाला, इट टर्न्स ब्लू। बेस में लिटमस डाला तो क्या बन गया मेरे भाई? ब्लू। क्या बन गया मेरी बहनों? ब्लू। क्या बन गया मेरे दोस्तों? रेड। अब ये कई क्लास में जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे भूल जाते हैं, और बच्चे भी कहते हैं कि ये भूल जाते हैं, इन लोग भूल जाते हैं कि आखिरकार लिटमस तो दोनों में सेम है, और लिटमस भी सेम है। अभी एसिड में डाला तो रेड हो गया, बेस में डाला तो ब्लू हो गया। एसिड में डाला तो रेड हो गया और बेस में डाला तो ब्लू हो गया। अब अगर ये इधर का उधर हो गया, ये ब्लू हो गया, वो रेड हो गया, वहाँ कन्फ्यूजन हो गया, पेपर में बैठ के सारा करा था, सब बेकार हो गया। अच्छा, ये है क्या? ये नेचुरल इंडिकेटर है, लिटमस नेचुरल डाई है, याद रखें। तो मैं आपको एक मेथड बताता हूँ, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, यू विल नॉट फॉरगेट इट। आप चाहोगे तब भी भाई मेरे भूल नहीं पाओगे, चाह के भी इसे भूल नहीं पाओगे। अगर आप बस एक चीज याद रखो, एसिड डी आया अंत में तो जो कलर बनेगा उसके भी अंत में डी है। रेड और ब्लू तो याद रहेगा ही रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं हो सकता, उसमें रेड बना उसमें ब्लू बना, कन्फ्यूज हो गए, वहाँ बैठ के क्या करें, किसी कंपटीशन में ही कन्फ्यूज हो गए। बेस में ई है तो ब्लू में भी ई है मेरे भाई, बेस में ई है तो ब्लू में भी ई है, एसिड में डी है तो इसमें भी कलर बन रहा है, उसमें भी डी है। बताओ, ये हो गया यहाँ से, ये हो गया यहाँ से। इज देयर एनी कंफ्यूजन राइट नाउ? आई थिंक आई हैव क्लियर्ड योर कंफ्यूजन फॉर होल लाइफ एंड यू विल एंजॉय दिस कॉन्सेप्ट। दोस्तों, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं बच्चे, वो भी आप अन्य बच्चों से काफ़ी एडवांटेज में होंगे। ठीक है ना? आई समझ में? It is available in the form of a solution or in the form of a strips or paper known as litmus paper। सॉल्यूशन मिलेगा लिटमस पेपर। जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। रेड और ब्लू लिटमस पेपर के फॉर्म में ये अवेलेबल होता है। एसिड बेस की परिभाषा लिख ली। एसिड बेस नेचुरल डाई होता है, उससे क्या प्रभाव पड़ता है ये लिख लिया। ठीक, अब ये कंसेप्ट है न्यूट्रलाइजेशन, इसे देख लें। वी हैव लर्न द एसिड टर्न्स ब्लू, पढ़ा हमने। ठीक,
एसिड्स टर्न ब्लू, acid turns blue, litmus red, and bases turn red, litmus blue. Let us what happen when the acid is mixed with a base. ये तो हम पढ़ चुके हैं, इसमें कोई वो नहीं है न्यूट्रल। अब क्या होगा जब एसिड और बेस मिलेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। जो मैंने बताया कि आप नमक खा लो, उसमें ना एसिड है ना बेस है, दोनों मिले हुए हैं। ठीक, वी आर गोइंग टू यूज इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार, इट इज कॉल्ड फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन एक इंडिकेटर है, ये केमिकल है एक टाइप में, है ना। तो इसका इस्तेमाल करके बता रहे हैं, ये प्रयोगशाला में है, ये खास पेपर में इतना कुछ आता नहीं है ना। अब देखते हैं यहाँ से साल्ट का क्या होगा। When an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralize with each other. Take, when an acid solution and a base solution are mixed in a suitable amounts, both acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed. दोनों ही खत्म हो जाते हैं. The resulting solution is neither an acidic nor a base. Getting my point? Touch the test tube immediately after neutralization. What do you observe? क्या देखते हो? The neutralization reaction, heat is always produced. हमेशा हीट इवॉल्व होता होगा जब दो एसिड और बेस को मिलाओगे। द इवॉल्व हीट रेजेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, जो मिक्सचर बनेगा उसका हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इज कॉल्ड साल्ट। एसिड प्लस बेस इक्वल टू साल्ट, 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 माय फ्रेंड, साल्ट। Getting my point? Now you have to learn this. The reaction, ये write down करें, the reaction between a acid and a base is known as neutralization. The salt and water are produced in this process when evolve the heat. ठीक, पूरी बात। एसिड प्लस बेस मिलाया साल्ट हो गया, ये आधी अधूरी बात है। ये तो राह चलते हुए रिक्शे वाले को भी पता है एसिड प्लस बेस मिलाए साल्ट हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं रोज मिलाता है घर में बैठ के। लेकिन आपको पूरी बात बतानी चाहिए, साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस वाटर, ये बात पूरी बात। अब देखें, एसिड प्लस बेस साल्ट और प्लस वाटर, और नीचे लिखेंगे हीट इज इवॉल्व, ये हुई पूरी बात, नंबर मिलेंगे। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल, HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NOH, what will be happen, NaCl plus water, NaCl plus water। अब ये कैसे बन गया, एक सेकंड में बता देता हूँ। आप दोस्तों, हो सकता है कि जो आपके स्कूल में टीचर में बड़े योग्य होंगे, लेकिन हो सकता है वो बताएं ना कि बहुत छोटे बच्चे हैं, क्या बताना। अब उन्हें क्या बता कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं, ये छोटा कोई नहीं है, ये तो सब महारथी हैं। देखो दोस्तों, ये थे, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक, अब दो ग्रुप आए आमने सामने, तो भाई एक जैसे को देख के आदमी नहीं अट्रैक्ट होता है ना। लड़का लड़की की क्वालिटी देखेगा, लड़की लड़के की क्वालिटी देखेगा। तो देखो इसमें क्या होगा, ये H आयन, ये OH आयन, ये आपस में मिल जाएंगे। ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये आपस में मिल जाएंगे। तो दोस्तों क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा मेरे भाई, NaCl, ये इससे मिल जाएगा। देखो मिलाओ, NaCl प्लस H2O, मिल गया कि नहीं, ऐसे बन जाता। ठीक, अब बढ़ते हैं। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, देखो इनडाइजेशन, खाना पचाते हैं ना, बताते हैं कि गैस बन गया, जो मैंने शुरू में बताया था, ये वही है इनडाइजेशन, पच नहीं रहा खाना। तो क्या है, स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अपने आप ही निकालता है। इट हेल्प टू डाइजेस्ट फूड, फूड को डाइजेस्ट करना है भाई से, है ना। चैप्टर 2 तो अभी आप लोगों को पढ़ाया नहीं, क्लास में तो पढ़ा दिया। मच ऑफ द एसिड इन द स्टमक कॉजेस इंडाइजेशन, अगर ज़्यादा एसिड बन जाएगा तो इंडाइजेशन हो जाएगा। द फूड विच यू विल कंज्यूम विल नॉट बी डाइजेस्टेड, समटाइम इंडाइजेशन इज पेनफुल,
and create some problem. Relieve indigestion, we take an antacid. Antacid means acid का opposite, or milk. As a milk of magnesia which contains magnesium hydroxide. सबके घर में ऐसी दवाई होगी, माताएं बहनें दादा दादी कुछ भी कोई खाता हो, आप देख लेना उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जरूर दिखा हुआ मिलेगा मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जरूर दवाई पे लिखा हुआ मिलेगा। एंटा एसिड है ये, समझ में आई? और अगर नहीं है तो इनो वीनो ये सब एंटा एसिड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना। अब कुछ ना मिले घर में तो खाने का सोडा खा लो। चलो अब ठीक, अब आगे देखते हैं। आंट बाइट, ये भी इम्पोर्टेंट है नॉलेज के हिसाब से भी, कंपटीशन के हिसाब से भी, और बच्चों के हिसाब से याद कर लो। फॉर्मिक एसिड जरूर आता है। व्हेन एन आंट बाइट्स, जब चींटी काटती है, इंजेक्ट द एसिटिक लिक्विड। फॉर्मिक एसिड, जब एक चींटी काटती है तो फॉर्मिक एसिड काटती है, वो फॉर्मिक एसिड शरीर में भेजती है इनटू द स्किन। दिस इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा घर में रखा रहता है, तुरंत रगड़ लें। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैरामाइल सॉल्यूशन विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट। ठीक, बात समझ में आ गई? रगड़ दें, ये कर दें, वो कर दें, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि कोई ये नहीं पूछेगा क्या रगड़ना, ये पूछेगा दर्द क्यों हो रहा। तो दर्द इस वजह से हो रहा कि भाई फॉर्मिक एसिड उसने शरीर में इंजेक्ट कर दिया। अब सॉइल ट्रीटमेंट, अब देखो एक बात और है, ठीक है। नेक्स्ट आगामी आने वाले क्लासेस में आप 10th में जाके 12th में जाके pH वैल्यूज पढ़ोगे। देन द लैंड आल्सो हैव द सम pH वैल्यूज। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू we come to know that the land is acidic nature or basic nature. The acidic nature will have acidic type of plants or vegetation, or basic type of nature, basic type of land or soil will have basic type of their respective plants or other vegetation. तो और केमिकल क्या है, ज़्यादातर जो केमिकल भी यूज, these are all chemicals are in form of acid mostly. Now we will see. Excessive use of chemical fertilizer, soil acidic. Plants do not grow well when the soil is either too acidic or too basic. ज़्यादा होगा दिक्कत आएगी. The soil is too acidic, it is treated with bases like quicklime, कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक लाइम। जैसे पेट का हिसाब वैसे ज़मीन का हिसाब है। भैया एसिडिक हो गया तो दिक्कत, बेसिक हो गया तो दिक्कत। द सॉइल इज बेसिक, ऑर्गेनिक मैटर इज एसिड टू इट। ऑर्गेनिक मैटर जो डाल देते हैं, ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड विच न्यूट्रलाइजेज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। मतलब बैलेंस चाहिए हर चीज़। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? फैक्ट्री वेस्ट, जितना भी आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो इनमें ऐसा होता है नहीं कि हर जितना माल आया उतना फिनिश्ड प्रोडक्ट बन गया। फैक्ट्री बेस्ड होता है फैक्ट्री का। होम में भी वी हैव वेस्टेजेस। फॉर लाइक एग्जाम्पल, इफ़ यू बाय सम पटेटोज, आप क्या देखोगे, छीला, तो आलू का अंदर खाया, छिलका थोड़ा ना खा लिया। सब्जी उसके छिलके वो भी वेस्ट। बहुत सारी चीज़ें वेस्ट हैं। कपड़े ले गए, कपड़े सिलवाने के लिए उसने दुनिया भर की कतरन काटी, देन वेस्ट। तो फैक्ट्री से भी बहुत सारे केमिकल जो हमारे लिए बन के आते हैं उसमें बहुत सारे वेस्टेज निकलता है, और उन वेस्टेजेस को क्या करा जाता है, हम फेंकते हैं, वो भी फेंकते हैं। तो इन इंडिया वी हैव डोंट हैव प्रॉपर waste management. Now, the waste of many factories contain acids. If they are allowed to flow into the water bodies, the acid will kill fish and other organism. भाई जानवरों को थोड़ा ना पता है, ज़्यादा कुछ पानी में गड़बड़ कर दोगे मछलियाँ मर जाएंगी। द फैक्ट्री बेस्ड आर देयर फॉर न्यूट्रलाइज बाई एडिंग द बेसिक सब्सटेंसेज। अब बेसिक सब्सटेंसेज डाल देते हैं। अब आगे क्लासों में आप पढ़ोगे कि क्या डालते हैं, क्या इंडिकेटर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। जैसे सिप है, सबसे बड़ा एग्जांपल है। आपके पिताजी या आप पेट्रोल का इस्तेमाल करते हो, पेट्रोल शिप्स के द्वारा आते हैं। उन शिप्स से जो पेट्रोल है, डीजल है, कहीं ना कहीं सीपेज हो जाता है, थोड़ा बहुत निकल जाता है। उससे क्या होते हैं, बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं समुद्र में, पानी में ही रहते हैं वो। आप आगे आने वाले टाइम में पढ़ोगे। अभी हम 7th पे, इसलिए 7th पे रहने तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा मेरे दोस्तों।
अब हम देख ले हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार चेक तो कर ले मेरे दोस्तों। एसिड्स क्लियर, किसके दिमाग में नई घंटी बजी? नहीं बजी घंटी तो मैं बताता हूँ एसिड क्या है। क्या है एसिड? बताया था भाई, चक्के देख लो, खट्टे जितने पदार्थ हैं एसिड्स हैं। एसिडिक, जो उनकी गुण क्वालिटीज, एसिड्स हैव एसिडिक नेचर। बेस, अभी ये 7वीं क्लास में चक्के ही देखोगे। फिर इंडिकेटर है हमारे पास, हमने पढ़ा था ना, भूल गए? कौन कौन भूल गया भाई? एसिड प्लस लिटमस पेपर, क्या बताया था? डी है तो रेड हो गया। बेस, यार भूलते हो बाबू से। लिटमस इक्वल टू ब्लू, लो जी हो गया। ये भी क्लियर है जी, ये भी क्लियर, ये भी इतना याद रखो बस। देखते हैं कौन जीत जाएगा क्लास में। बेसिक इंडिकेटर पता है ही, नेचुरल है ये लिटमस पेपर, लिक्विड फॉर्म में होता है, इसके फॉर्म में होता है, मिल्क और भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, ठीक है। न्यूट्रल, न्यूट्रल क्या है? न्यूट्रलाइजेशन क्या है? ये देखो बस, तेज बस जरा सा बस। कुल मिला के ये कि पूरे चैप्टर में कुछ है ही नहीं। एसिड लिया, अब प्लस बेस लिया, और ये साल्ट बनाया। एक ये रिएक्शन याद कर लो। एसिड कौन सा है भाई दोस्तों? HCl मेरे मित्रों। बेस क्या है? NaOH। लाओ जरा सही समझाई दूँ एक बार और। भाई मेरा भाई जाएगा क्लास में तो कोई उससे आगे निकल जाएगा। इतनी ज़्यादा हिम्मत किसकी हो गई जो मेरा वीडियो देख कर जाएगा, पिछड़ जाएगा। HCl भाई, और ये NaOH। क्या बताया था मेरे दोस्तों? NaCl प्लस H2O प्लस हीट, ये निकलनी है। ये एसिड है, ये बेस है, न्यूट्रलाइज हो गया ये इतना हो गया, ये इतना हो गया। न्यूट्रलाइजेशन साल्ट ये हो गया। इंडिकेटर लिटमस पेपर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो फॉर द अपकमिंग वीडियोस कीप इन टच विद मी, and if you like it please share and subscribe the channel. Thank you very much. Okay, bye, have a good day.